हेलो मेरे लगते जिगरो। बहुत बहुत मजे में हो गए सब लोग अपने घर में। एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। डिफरेंट dimension we try to understood about the property of matter. Okay, and lastly we try to understood, can matter change its state? We got the answer in yes. Okay, and after that we tried one more thing, is any factors are there which are responsible to change the matter in one state to another state, and that one was the temperature and the pressure. That much we studied, and in that chain one more and last factor related to matter is, that is the evaporation. In Gujarati or Hindi, it is called the Vashpi Bhavan or Ghani Bhavan. वाष्प में बदल जाना, evaporate हो जाना. Okay, so do we always need to heat or changing the state of matter? This is one question. कि अगर हमको जो है किसी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना हो, so is it so that always we need to heat to change it one state to another? Okay, think about it. सोचिए. One more question I am asking you. Can you quote some example from everyday life where change of state from liquid vapor take place without the liquid reaching at boiling point? बिना boiling point में पहुंचे क्या लिक्विड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है? नहीं, नॉर्मली हम लोगों ने यही पढ़ा है कि भाई when we heat the solid, okay, say the ice, then it changes its state. But when any liquid without reaching its boiling point, बिना boiling point में पहुंचे, can it change its state? सोचिए जरा. और एक छोटा सा और हम लोग इसके ऊपर मैं आपको क्लू देता हूं. कभी अपने घर में आप लोगों ने पानी को, थोड़ा सा पानी, स्लाइटली वाटर, ओके, जस्ट कीप इन वन ग्लास, ओके, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर यू कीप इन वन small china dish, and same quantity of water is sprayed in the floor. So what effect you will see there? Observe it. Okay, then you will get the idea of evaporation. वाष्पीभवन का आइडिया आपको वहां से मिलेगा. But I am not going to wait you for that much long. Okay, I will explain you here only. आपको यहीं पे मैं समझाता हूं मैं. तो first of all, what happened exactly without reaching boiling point? बिना boiling point में गए बिना कैसे जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी लिक्विड जा सकता है? तो आंसर ये है उसका, particles of matter are always moving at never at rest. You know very well there is consistently motion of the particle inside the मैटर के अंदर उसका नॉन स्टॉप मोशन, नॉन स्टॉप मूव ऑन करते रहते हैं. एंड यू नो वेरी वेल व्हेन दे मूव देन ऑटोमेटिकली इट क्रिएट द काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है. एंड व्हाट हैपन देन? इन केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी. सो इन लिक्विड स्लाइटली मूवमेंट इंक्रीज the kinetic energy tremendously. Okay, and due to that, what happened?
one phenomena is created, and that is this kinetic energy is able to break away from the force of the attraction of other particle and get converted into vapor. And due to that kinetic energy, what happened? The particles of the matter started to break up, and due to that one phenomena is created, and that is called the evaporation. So what is exactly evaporation? Definition is given here. You can see the phenomenon of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point. This point is most important, below its boiling point. Boiling point के नीचे किसी भी लिक्विड का वेपर में यानी कि भाप में बदल जाना, ओके, एट एनी टेम्परेचर, 1 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, 35 डिग्री भी हो सकता है, एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड एवोपरेशन. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एवोपरेशन. बिना बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचे, बिना बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचे जब कोई भी लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड द एवोपरेशन. उसे एवोपरेशन बोलते हैं. सो नाउ क्वेश्चन इज राइज, which factors are responsible for evaporation? Okay, so here I have mentioned some temperature, surface area, humidity and state of liquid. Okay, that is the type. So first let's talk about the temperature. Temperature बच्चों जितना हाई होगा, rate of evaporation उतना ही फास्ट होगा. एंड ड्यू टू दैट रीजन गर्मी में आप लोग देखोगे टेम्परेचर हाई होता है एंड क्लोथ्स वेरी फास्टली जो है सूख जाते हैं, बराबर है, फटाक करके सूख जाते हैं. ओके, एंड सेम काइंड ऑफ क्लोथ अगर आप विंटर में जो है क्या कहते हैं ड्राई करने के लिए रखो, सुखाने के लिए रखो, तो थोड़ा उनको टाइम लगता है. ओके, फर्स्ट इज the temperature. Second, surface area. If surface area is larger, the rate of evaporation is also fast. If surface area is shrinked, small, then rate of evaporation is slow. मैंने आपको जो पहला एग्जांपल दिया था कि आप सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ग्लास में, दूसरा चाइना डिश में, और थर्ड आप जमीन में स्प्रेड कर दो, फ्लोर पे स्प्रेड कर दो, डेफिनेटली नाउ यू विल गेट द आइडिया. फ्लोर का जो वाटर है, बिकॉज इट्स सरफेस एरिया इज लार्ज एंड ड्यू टू दैट रीजन इट विल एवोपरेट फास्टर एंड वेरी स्लोली दैट ग्लास वाटर विल बी एवोपरेट बिकॉज सरफेस एरिया इज स्मॉल. सेम थिंग यू कैन सी इन द क्लोथ. कपड़ों में भी आप ये देख सकते हो, कपड़ों को हम लोग क्या करते हैं, झटक से सुखाते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो एरिया हैज इंक्रीज, एवोपरेशन बिकम फास्ट. इफ द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ यू श्रिंक, ओके, इट विल टेक मोर टाइम. ओके, नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ह्यूमिडिटी मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इन द नेचर. ओके, इन एयर, हवा में पानी का प्रपोर्शन, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी. बेज गुजराती में कहिए આપણે એને. Is it clear? If the proportion of humidity means the proportion of water is more in the atmosphere, then the rate of evaporation is down, slow. आप लोग देखो बरसात के टाइम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, आप कितना भी सरफेस एरिया फैला दो उसका, कपड़े जल्दी नहीं सूखते. व्हाट इज द रीजन? रीजन इज ओनली दैट बिकॉज द प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमिडिटी इज मोर इन द नेचर. इज इट क्लियर? एंड ड्यू टू दैट रीजन जो उसको जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है. इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ लिक्विड. व्हाट काइंड ऑफ लिक्विड इट इज? अगर लिक्विड कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे आप लोग परफ्यूम वगैरह यूज करते हो,
अब उतने ही प्रोपोर्शन में पानी हाथ में फेंको और उतने ही प्रोपोर्शन में अगर आप कोई स्प्रे परफ्यूम वगैरह डालते तो आप लोग माफ करोगे परफ्यूम फटा करके एवोपरेट हो जाता है, ओके, जबकि उसके कंपेयर में वाटर को एवोपरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है. सेम वे पेट्रोल ऑल्सो, ओके. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर which are responsible for the evaporation rate. Okay, they are responsible to increase or decrease it. Now, next and last in this, how does evaporation cause cooling? Evaporation की वजह से ठंडक कैसे हो जाती है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा अभी अभी दिस इज द रेनी सीजन, बराबर है, बहुत ज्यादा बरसात पड़ने की वजह से जो हीट है इट हैज अब्सॉर्ब्ड एंड ह्यूमिडिटी, जो पानी का प्रोपोर्शन है वो एयर में ज्यादा हो गया है एंड इट व्हाट इट डज इट रिड्यूस द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द एवोपरेशन. द रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा हो गया है एंड ड्यू टू दैट रीजन the proportion of water droplets become more in the nature atmosphere and due to that reason क्या हो रहा है, आपको जो है ठंडक महसूस हो रही है. So that is the last one and here we will complete this chapter. So one paragraph is there which I am going to read from your text. In an open vessel the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to reason and energy lost due to evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cool. This one you can even experience in your home also. आपके घर में भी ये चीज देख सकते हो. Just take one glass, okay, and put some ice cube inside the glass. Okay, कांच का ग्लास लीजिए और उसके अंदर ये सब रखिए, then automatically you will observe after some time outer surface of the glass become cool, okay, and little droplets develop there from where that water has come. तो आजू बाजू की जो एयर थी वो जो है आइस के कांटेक्ट में आने की वजह से कूल डाउन हुई, एवोपरेशन हुआ और आजू बाजू की जो हवा ठंडी हुई उसका रिजल्ट वहां पर ह्यूमिडिटी का प्रोपोर्शन बढ़ा और उससे जो है वाटर ड्रॉपलेट डेवलप हुए, ओके, एंड लाइक दैट वे द सरफेस बिकम कूल. नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन in your palm? You know very well acetone, nail polish remover, okay. अब जब उसको आप अपने सरफेस पे हाथ पे रखते हो तो हाथ में ठंडक लगती है. रीजन क्या है? टेम्परेचर बॉडी का जो है उसको एवोपरेट करने में तो नो डाउट मदद करते ही है, बट एट द सेम टाइम द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम द पाम. हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे जो उसको एनर्जी मिलती है एंड सराउंडिंग एंड एवोपरेट कॉजिंग द पाम फील कूल. वो फटा करके एवोपरेट होता है और हमको ठंडक लगती है. सेम थिंग आप लोगों ने और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे. गर्मियों के टाइम पे हम लोग हमारे घर के आजू बाजू में पानी का छिड़काव करते हैं. वी स्प्रेड द वाटर. व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू एवोपरेशन. ओके, एवोपरेशन की वजह से क्या होगा, वो जगह को ठंडे होने में मदद मिलेगी. एंड लास्ट क्वेश्चन आई एम कीपिंग फॉर यू, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर? इसका जवाब आपको ढूंढना है. ओके, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि अगर सब मैं बताऊंगा तो व्हाट यू विल थिंक. तो ये आपको सोचना है कि गर्मियों के समय में हम कॉटन क्लॉथ क्यों प्रेफर करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. और हमको ये इसलिए भी सोचना है बिकॉज इन इंडिया इट इज द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. टेम्परेट जोन में हम लोग आते हैं, तो व्हाई वी प्रेफर टू वेयर द कॉटन क्लॉथ फ्रॉम एशियन टाइम rather than another cloth. Or in another word I can say this question like this way, why we have to avoid the synthetic cloth country like India. इंडिया जैसे देशों में हमें जो है सिंथेटिक क्लॉथ क्यों नहीं पहनने चाहिए, बराबर है, उसके बदले में हमें कॉटन क्लॉथ को क्यों प्रेफर करना चाहिए, व्हाट इज द रीजन? ट्राई टू फाइंड दिस आंसर साइंटिफिकली. ओके, सो हियर दिस चैप्टर इज ओवर. Related PDF with this you will get
write the answers, and first chapter we cleared here. Now from second chapter onward, your science teacher, science madam, she is already coming in school and she will start second chapter with you. Okay, so here I am completing my lecture and see you soon with mathematics. Okay, bye.